Beautiful. So, namaste and good morning, everyone. So good to see all of you here. Namaste. Good morning. Yes. So, welcome to each of you to this beautiful Sunday morning. I think it just can't get better than this. A very special welcome to N.K. Chaudhary sir, who is the chairman and MD of Jaipur Rugs. Sir, on behalf of everyone, let me share that we are truly blessed, fortunate, and we are so excited to hear from you, to learn from you. We have studied so much about Jaipur Rugs that I'm sure all of us here are dying to interact with you. But as always, before we start this interesting event and as it unfolds, let's first all condition ourselves and offer our gratitude to all our gurus, purvacharyas, and rishis of ancient India with our invocation prayers. So, once again, I request all of you to sit straight, nice and tall. Take a moment to center yourself. Feel a nice sense of grounding. Keep your back nice and tall. Roll your shoulders back and gently close your eyes. Take a moment here to connect with your breath. And now, join me in chanting Om, followed by our invocation prayers. And in your mind, think about all the gurus, teachers, elders, parents, and offer your gratitude. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Gently bring your palms to your chest, bow your head down. With this beautiful sense of blessings and blissfulness, smile to yourself and gently open your eyes. Namaste, Rajesh. Over to you. Namaste, everyone. And Shubh Ravivar. Happy Sunday. Whichever language you take, today's day is about the sun. And I think the sun has decided to shine even brighter today because that particular sun has brought to us this day. I say this because in Indian wisdom, we always think about the sun, the Surya, as a dev. और सूर्य देव ने आज हमारे लिए एक स्वामी हमारे सामने लाया है. Now, what is this Swami?
Now, as all of you are students of Chiranjeev Gurukul or associated with Chiranjeev Gurukul or associated with studies of Kautilya Arthashastra, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको याद दिला दूं कि राजा बनना आसान है. To get the position of a CEO or a leader or an owner is relatively easy. पर स्वामी बनना उतना ही मुश्किल. Because Swami is developing the mindset of leadership which is required for creating all-round prosperity. And I think one person who has been able to do it, amongst, of course, several other leaders our nation has known and continues to have, is Swami N.K. Chaudhary ji. So first of all, before I tell you more about him, a great and warm welcome to Chaudhary sir. Namaste, sir. And thank you so much for agreeing to speak to us and so very easily. I want to tell you that at least 7-8 years back, 8 years back, maybe 9 years, I happened to come across the case of Jaipur Runs. Okay, I didn't know that the organization existed till then, to be quite honest. और मैंने शायद ये स्टैनफोर्ड का स्टडी था सर, एक छोटा सा केस स्टडी था, and it was just about 3 pages, and I always found that with people whom I work with, generally the 10, 15, 20 pages wala case study is a overdose. So I'm always looking to make it easier and still convey the principles of Kautilya Arthashastra with people whom I work. So when I saw this case, I was delighted. I didn't know Chaudhary Sahab. I, of course, knew him through that, but I was very happy. And since then, I have been using this case over and over again to share with people and to analyze it. As recently, sir, as just 4-5 days back, हमने और एक organization के साथ ये case use किया. Of course, now we have a better and more improved version of the case, and I'm also sure that when we finally study our organization and make a case of it, it will be far more meaningful than what any of the other universities of the world can do. So a little bit about sir before I hand it over to him. I took his permission to introduce him in my way. So I'll continue to do. Yes. I want to, the first thing that you notice about him is his down-to-earthness. I don't want to just use the word humility because this is a quality of a Swami. But you know, हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं that the Swami has to be accessible, available, and still inspire. It's not easy. And that's the first thing I noticed about him. He's inspiring, but so accessible and available. And all we had to do is write to him, Jayesh ji, I want to thank you especially once again, even though Jayesh ji keeps saying, no, don't thank you. No big deal. But I want to thank him because he made available sir's connect to us. And I just had to speak to, in fact, Chaudhary Sahab very, wrote a mail saying, please call me anytime. I called him in the night and within 2 minutes, he said yes. This is probably the fastest conversion I've ever had of a speaker. So that's enough to tell about what an individual he is. You listen to his story from your own, first person, even though he's sitting in Jaipur, thanks to technology, hum sun sakte hain. Friends, I want to tell you, don't just listen to it. Please take elaborate notes so that we can use this blessing today of having him to really understand our studies better. So, great welcome to you, everyone connected with the Chiranjeev Gurukul community, which we created for all those who are associated with these studies. With that, I'm going to bring in a small clip. I hope, Meenakshi, you are ready. A small clip that will give you a little bit of a trailer of what's to follow, right? पिक्चर के पहले हमेशा ट्रेलर आ जाता है, वो हम देखेंगे. उसके बाद we will be over to sir. Please put your notes down. Any questions that you may have, put it on the chat. We will note it.
एंड को ले लेंगे. We will answer as many as possible. Okay, are you ready, everyone? Okay, super. Can we have the clip on, please, Meenakshi? Everyone, reminding you, please go on mute. Please start. Jaipur Rugs is the story of an extraordinary founder who redefined the entire hand-woven carpet industry with a clear insurgent mission. It all starts with the weaver. Working from their own homes, the weaver creates beautiful carpets, knot by knot, month by month. In the 1970s, the founder, N.K. Chowdhury, started selling hand-knotted carpets, setting up 2 looms in his own home. The founder focused ruthlessly on one critical capability, creating and serving a community of weavers. The first challenge is that all weavers are the untouchable class. So all my family members, they try to stop me, but I can't see the difference, how they may be untouchable. This differentiated Chowdhury from his competitors, usually independent and unreliable contractors, treating weavers more like a commodity. सिर्फ कारपेट बढ़िया बनवाना ही था उनके दिमाग में, लेकिन लोगों से कैसे काम कराए, लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाए, वो बिल्कुल नहीं है. Over the next 30 years, the company grew from 2 to 7,000 looms spread across 700 locations. Business was growing like the wildfire, but something is wrong. I have very little time to go to the villages as I was going before, because now I have to run a global business. This is a pretty classic dilemma for founders. Do I spend my time professionalizing, adding new capabilities, or do I double down on my original insurgent mission? Chowdhury knew he had to do both, but his focus was to get back to the front line, get back to listening to the weavers. So many solutions started coming from those frontline people. They are not only viewers, they have wonderful qualities within them. Some of them are wonderful mobilizers, quality controllers, teachers. So Chowdhury introduced a whole series of new initiatives to unlock the untapped potential of his weavers. पढ़ाई बिना जीवन अधूरा है. अब बोलते हैं कि अभी इतना फड़ली बहुत है, लेकिन पढ़ाई की कभी पूरी नहीं होती है. ये मैं खूब जानती हूँ. मैं खुद अब मैं जानने लग गई. The renewed focus on weavers like Archana resulted in a huge number of new leaders emerging who could help Chowdhury with the insurgent mission. I mean, just listen to how excited Swati is about mentoring Archana. She had confidence that I can do anything in the world. It is a very inspirational statement for me and challenge for me that how can I make her, how can I help her to grow with the organization. And as Swati and other leaders began to listen to the weavers, they realized there were huge new growth opportunities for Jaipur Rugs. Some of them were creating carpet for 25 years, 30 years, but they never saw the final product. And from that, we initiated the Weavers Engagement Program. They bring all the weavers together and they talk to them about how their carpets connect with the consumer. And this gives the weavers a tremendous sense that they're part of something bigger than just the months they spend with a single carpet. तो हम देखे ना वहाँ पे, मतलब आपको भाई साहब जी को, भाभी जी को, तो आके में बहुत खुशी हुई है. मैं वहाँ पे जाके जयपुर हेड ऑफिस कंपनी को धंधो चलतो रहे और हमार गुजारो चलतो होतो रहे. So we really encourage them to see that we are part of a big family. And I found within a few months, people are more positive, more connected, and there was a big change. As Chowdhury began reading Bain's research and blogs on founder mentality, the one thing that became incredibly clear was that this recommitment to the insurgency could lead to the next wave of growth and innovation. When I started reading those blogs, it was like a magic. A great example of this type of innovation is that Jaipur Rugs is now having the weavers design many of their own carpets. नहीं आइडिया तो कोई अपना दिमाग से ही आइडिया घूम से अपना आप ही, तो दिमाग अपना आप ही काम करते समय मैं घूम गया, भाई ऐसे ही चला. वो तिरछा हुए देखे तो घूमते पत्ते दिखेंगे ऐसे ऐसे चलती. The designs created reflect the weaver's surrounding. Through the rug, the customer has an insight into the weaver's life. This whole decision to have the weavers design their own carpets has resulted in major design awards. Let's just look at the story behind the Differences carpet.
The Anta rug, which means differences, was designed by 3 artisans, and they were not exactly getting along with each other. So the pattern you see on the bottom of the rug is not very aligned. As they became more friendly, the pattern on top of the rug is much more harmonious. The success of these Weaver-designed carpets has led to an explosion of creativity and innovation. In fact, designers from the West are now coming to Rajasthan to get inspired directly by these weavers. That was incredible to see the actual looms in place. Amazing, the sheer artistry and mastery of the craft. The knotting process is astounding, but it also freed me into thinking anything is possible with making these rugs. How we can translate our art pieces and our ideas into a rug that's loomed knot by knot. It's going to be art that you can walk on. Jaipur Rugs makes the customer experience exceptional. When you buy the Weavers collection, you get an incredible amount of information about where the rugs came from, about the yarn spinners, and the weavers who made it. In a recent initiative, yarn spinners and weavers have created postcards to be included in these information packs. And now consumers are starting to write postcards back. In business circles, we talk an awful lot about consumer dialogue. Jaipur Rugs is a great case study of a real circle of communication between weaver and consumer and back to weaver. As Chowdhury talks about his insurgent mission, he often says, "We don't sell carpets, we sell a family's blessing." And this was all about his dream to connect the weavers directly to the customer. This is probably best symbolized by a loom that sits in their head office. Every yarn spinner, every weaver, every customer who comes there stitches a little bit on the loom. And the final carpet, which will take years to make, will be a symbol of how the artisans and the customers are linked and woven together. Jaipur Rugs is founder mentality in action. I mean, it's a pretty simple parable. Define your insurgency, focus on a few critical capabilities, connect your front line directly to your customers, and start a conversation, and then have faith that growth and innovation will. Wow. We don't sell carpets, we sell a family's blessing. Friends, before I hand over to the Swami N.K. Chowdhury Saab for speaking to you, I just want to remind you that in Indian wisdom, Kautilya Arthashastra more specifically, the leader is not just the leader of an organization. The leader is the leader of an ecosystem. I repeat, the leader is a leader of an ecosystem. That means everyone who is connected with that organization has to find prosperity. And that is what Chowdhury Saab has really managed to do through his amazing thought, amazing ideas, and of course, inspiring the entire organization. So over to you, sir, to listen to what you have to say about this. Just one quick point before he starts. One of the things that I, clearly, vividly remember from that case, he referred to the school of unlearning. So a little bit, sir, if you could mention about that, over to you. So thanks so much for, agreeing to be here. Over to you. Thank you. सर्वप्रथम मैं राजेश जी कामत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मेरे को मिलने का, बातचीत करने का आज मौका प्रदान किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ, द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। और आज मैं आपसे जो मेरे अनुभव शेयर करूंगा वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मेरे को जो अनुभव हुए वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद ही मेरी रियल एजुकेशन की शुरुआत हुई। आज के 44 साल पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा कि चूरू शहर में ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था और फिर सेल्समैनशिप में मेरा मन भी नहीं लगता था। इसी दौरान मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली
मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर मैंने सोचना शुरू किया, हु एम आई, मैं कौन हूं, वह मुझे जानना है। और मैं अपने आप को जानने के लिए किसी हिमालय पे नहीं जाऊंगा, आश्रम में नहीं जाऊंगा, लेकिन बिजनेस के माध्यम से मैं अपने आप को जानूंगा। तो जब थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं एक पीपल पर्सन हूं, नेचर में समय गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त थोड़ी रिसर्च करने के बाद में समझ में आया कि इंडिया में कारपेट काफी बनते थे और एक्सपोर्ट में उनकी बड़ी अच्छी मांग थी। तो जब इस धंधे की थोड़ी मैंने स्टडी की, रिसर्च की, तो मुझे समझ में आया कि ये धंधा मेरे को सूट करेगा, क्योंकि मुझे अलग अलग गांव में जाने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता, द पीपल हु आर रिजेक्टेड। तो यह सोच के मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लिया, 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी। 2 लूमें मैंने अपने घर पे लगा के कारपेट वीविंग की शुरुआत की, और उस पुरानी साइकिल से मैं वीवरों के घर पे आया जाया करता था। 2 लूम शुरू करने के बाद में मैंने देखा कि उसमें काम करने वाले सारे आदमी थे, मर्द थे, तो वो समय से नहीं आते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं बनाते थे, डिसिप्लिन नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ वुमेन की शुरुआत हुई, तो मैंने देखा वुमेन समय से आती है, डिसिप्लिन है, क्वालिटी अच्छी बनाती है। तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि भविष्य में मुझे केवल वुमेन के साथ ही काम करना चाहिए। और हमारी जो मोस्टली जो वुमेन है, जो वीवर्स हैं, वो सारी वुमेन ही है। और अभी हम लोग केवल वुमेन वीवर को ही ज्यादा ट्रेंड करते हैं। इस काम को शुरू करने के बाद में जो सबसे पहला चैलेंज आया वो था, दैट वाज फ्रॉम माय ओवन फैमिली मेंबर्स। माताजी, पिताजी, परिवार के लोग बोले कि ये सारे जो आपके वीवर हैं, दे आर फ्रॉम अनटचेबल क्लास, ये अछूत जाति के लोग हैं, हम इनको घर पे नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जब चूरू शहर में मैं किसी पार्टी, फंक्शन, गैदरिंग में जाता था, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तो मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए कि उसके काम में, विचारों में कितनी शुद्धता है। और मैंने ये भी देखा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं, जिस समाज का हिस्सा हूं, उसमें कितनी हिपोक्रेसी है। लोग घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेले होते हैं तो बिल्कुल और ही कुछ होते हैं। लेकिन मेरा जो प्रेम था वो वीवर और वीविंग के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा था। और मैं दोपहर का खाना भी वीवरों के साथ लूम पे ही बैठ के खाया करता था। और मैं पूरा दिन जो वीवर काम करते थे उसको ऑब्जर्व करते हुए गुजारा करता था। मैंने कुल मिलाकर 9 साल तक आई वर्कड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसकी वजह से मुझे कारपेट की टेक्निकल बारीकियों की बहुत गहरी समझ आई। फिर 9 साल एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर काम करने के बाद में मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट करने की सोची और मैं जयपुर आया और अपने भाई के साथ मिलकर मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। फिर मैं 3 साल जयपुर में रहा। लेकिन उस वक्त भी इंडियन कारपेट की विदेश में इतनी मांग थी कि मुझे और बहुत सारे वीवर चाहिए थे। हम डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त पता चला कि गुजरात का एक आदिवासी एरिया है, वलसाड, डांग, नौसारी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सरकार कोशिश कर रही थी कि इन आदिवासियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए
सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही थी। तो मैं उस एरिया में ये जानकारी करने के लिए गया कि क्या मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए। तो पहले दिन वहां के लोकल लोगों ने मेरे को बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं, दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर्स, ये बाहर के आदमी को पसंद नहीं करते, तो अगर आप इस एरिया में काम शुरू करेंगे तो दे कैन डैमेज यू। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था जो इंग्लैंड से इंडिया आता था, और पेंटेड बाल्स ऑफ शेखावाटी की जो हवेलियां है उसकी वो स्टडी करता था। तो वो शाम का खाना मेरे घर पे ही खाया करता था। तो जब कोई समस्या आती तो हम उससे सलाह लिया करते थे। तो मैंने उसको पूछा कि इस आदिवासी एरिया में मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बताया कि ये जो आदिवासी लोग हैं, दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया, तो इसके लिए बाहर के लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं करते, उनका विश्वास नहीं करते। तो तुम इनको लव, एम्पैथी और कंपैशन से डील करते हो, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैंने उस एरिया में कामकाज की शुरुआत की, और पहले 3 साल में उन्होंने मेरे को इतना पसंद किया कि दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं वीवर से मिलने के लिए गांव के अंदर जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार किया करते थे। मैं कुल 8 साल तक उस आदिवासी एरिया में रहा, और 8 साल में मैंने 15,000 ट्राइबल लोगों को इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और आज भी हमारा जो सबसे बेस्ट कारपेट, सबसे महंगा कारपेट जो बन के आता है वो उसी एरिया से बन के आता है। उस वक्त मोबाइल फोन तो बहुत बड़ी बात थी, उस एरिया में तो लैंडलाइन भी नहीं होती थी, क्यों पूरी एरिया में पहाड़ियां थी, नदियां थी। तो मैंने पूरे एरिया में कम्युनिकेशन के लिए सरकार से परमिशन लेके वायरलेस की परमिशन ली मैंने, और एक ऊंची पहाड़ी पे रिपीटर लगा के मैं पूरी एरिया में वॉकी टॉकी के थ्रू बातचीत करता था। इस दौरान मेरे पहले 3 बेटियां हुई, और हमारे समाज में जब किसी वुमेन के पहली 3 बेटियां होती है तो परिवार के लोग उसकी हीन नजरों से देखते हैं। तो भाई बड़ी परेशान रहती थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि बेटियां होने से परेशानी क्या है। तो फिर उस अंग्रेज दोस्त को पूछा कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। तो उसने बताया कि तुम्हारे परिवार में जो बेटे और बेटियों में जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो बॉय चाइल्ड है वो तो स्पॉइल्ड हो जाते हैं और बेटियां पीछे रह जाती है। और तुम बड़े लकी हो कि तुम्हारे पहले 3 बेटियां हैं, क्योंकि वुमेन आर मोर एफिशिएंट एंड मोर रिसेप्टिव। तो उसकी बात को मान के मैंने और वाइफ ने बेटियों को अच्छी तरह पाला पोसा, और सभी बेटियों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। जब पहली बेटी अमेरिका पढ़ने के लिए जा रही थी तो उसने पूछा, पापा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैंने उसको बोला कि तू, मुझे वीविंग में और वीवर के साथ खूब मजा आता है, तो एज ए डॉटर ऑफ द वीवर तुम अमेरिका में जाना, क्योंकि मेरा जो एंड कंज्यूमर है वो भी अमेरिकन वुमेन है। तो जब तुम पढ़ रही हो तो पढ़ाई के साथ साथ ये देखना कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, घर को कैसे डेकोरेट करती है, उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है। तो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। सभी बेटियों ने इस बात का ध्यान रखा, जिसी की वजह से आज जयपुर इस लेवल पे आ पाया। इस दौरान जब मैं गांव में जाता था, मैं देखता था कि एक महिला अपने गांव के बाहर नहीं गई हो, प्राइमरी स्कूल भी
कभी नहीं गई हो, लेकिन उनके अंदर कितनी विजडम है। एक परिवार की इतनी लिमिटेड इनकम होने के बाद भी उस परिवार में जिसमें 8 से 12 लोग होते हैं, वो सबके बजट को मैनेज करती है, खाना मैनेज करती है, पढ़ाई मैनेज करती है, मेरी मैनेज करती है, एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट। उसके बाद भी वो 6 से 7 घंटे कारपेट की बुनाई करती है। तो दे आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। 1999 में मैंने अपने भाई से अलग होकर जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की, और जयपुर कंपनी जब मैंने बनाई तो पहले 3 साल में मैंने जितना भी पैसा कमाया था वो खो दिया, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसकी वजह से मैं 3 साल में बिल्कुल फेलियर हो गया। तो जब गहराई में जाने से मुझे समझ में आया कि कारपेट बनाने में, जब मैं गुजरात में था तो मैं जो कारपेट बनाता था तो क्वालिटी और क्वांटिटी में ग्लोबली मेरा बहुत नाम हो चुका था। तो जब मैंने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया तो आई हैव ए फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। जब इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। और दूसरा कारण था कि मैं माइक्रो मैनेज करता था। आई वॉज एवरीवेयर इन ईच डिसीजन। तो मैं एक बर्फ की सिल्ली जैसा बन चुका था। तो मुझे सक्सेस होना है तो उस बर्फ को पिघलाना, पानी बनाना पड़ेगा, और पानी जिस भी बर्तन में डालोगे आप उसी का शेप ले लेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अभी तक मैंने अपना पूरा जीवन गांव में दिया था, अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है। तो ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे बहुत सारी नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप स्टाइल को बदलना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया, और मेरी एक सीखने की नई जर्नी शुरू हुई जो आज तक भी काफी अच्छी चल रही है। इसके बाद जो मेरे 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, एक एक बच्चा इंडिया आने लगा और बिजनेस ज्वाइन करने लगा। और जब सेकंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो उनके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर होता है, उनके पास अलग तरह की कैपेबिलिटीज होती है जो फाउंडर के पास नहीं होती। तो माय बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए मैंने एक्सपीरियंस और फ्रेशर एजुकेटेड प्रोफेशनल रखे, और पढ़े लिखे लोगों को रखने का मेरा ये पहला मौका था। बट एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। सबने मेरे को बिल्कुल उल्टा लटका दिया। तो मुझे समझ में आया कि knowledge is power, but knowledge gained without practice develop ego. One can get lost in knowledge without knowing anything about the reality. तो उस वक्त इस समस्या को हल करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, उसका नाम दिया द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हमारे जितने भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल थे उनको बताया कि हमारे जो अलग अलग प्रोसेसेस है कारपेट इंडस्ट्री में, ये लोग बिना पढ़े लिखे जरूर हैं या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बिजनेस को समझते हैं, उन प्रोसेस को समझते हैं। तो आप उनके साथ बैठिए, समय गुजारिए और उनसे सीखिए। और मैंने भी जिम्मेदारी ली कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं कोच कर पाऊं।
इसी दौरान हमने एक मैनेजमेंट फिलोसफी डेवलप की, फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, द मोर आई लूज माई सेल्फ द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्योंकि मुझे तब तक अनुभव हो चुका था कि सारी प्रॉब्लम के जो जड़ है वो अहंकार में है। तो एक आदमी जितनी अपनी आइडेंटिटी को बनाएगा उतना ही वो सफरिंग को, प्रॉब्लम्स को अपने काम में, अपने जीवन में इनवाइट करेगा। 2004 में एक बार मैं ऑफिस में बैठा था और मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और मैं हर साल 3 से 4 हजार वीवर को, नए वीवर शामिल करता जा रहा था। हेड ऑफिस के अंदर स्टाफ भी बढ़ता जा रहा था। तो मैंने सोचा इतने लोग मेरे बिजनेस में बढ़ रहे हैं, कल ये समस्या मेरे को भी आने वाली है, तो इससे पहले समस्या आई उसका समाधान कर लेना जरूरी है। तो यह सोच के मैंने जयपुर एक फाउंडेशन बनाया। और फाउंडेशन बनाने का मतलब ये था कि जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड सेट को कैसे मैं बदलूं, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है माइंड सेट। और इनके जीवन को कैसे टच करूं मैं, इनके जीवन में कैसे मैं बदलाव लाऊं, यह सोच के फाउंडेशन बनाया। और फाउंडेशन ने बड़े अच्छे प्रोग्राम बनाए जिसकी वजह से व्यूअर के माइंड सेट में इतना बड़ा चेंज आया कि दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। और आज उसी की वजह से पूरी दुनिया उनसे मिलने के लिए आती है। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम फाउंडेशन ने बनाए। 2008 में एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास एक फोन आया। उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। और शायद आप सभी जानते होंगे कि उस वक्त सीके प्रहलाद ही वाज द नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु ग्लोबली। ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु थे वो, नंबर 1। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को फोन कर रहा है, मैं बोलूंगा एनके चौधरी तो वो फोन काट देंगे। फिर उन्होंने बोला आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। फिर उन्होंने पूछा मिस्टर चौधरी डू यू नो मी। मैंने बोला आपको कौन नहीं जानता, हिंदुस्तान की गरीबी दूर करने का फार्मूला आप ही बताने वाले हैं। फिर उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। मैंने उनको बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। शायद मेरा पड़ोसी भी मेरे को नहीं जानता, तो इस केस स्टडी को पढ़ेगा कौन। फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने 41 पेज की जयपुर की केस स्टडी की, जो उनकी किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। और आज दुनिया के सारे टॉप कॉलेजेस में वो केस स्टडी पढ़ाई जाती है। प्रोफेसर सीके प्रहलाद की केस स्टडी पढ़ने के बाद में हमें समझ में आया कि वी हैव डन समथिंग राइट। उसमें सबसे बड़ा जो पहला कारण है वर्टिकल इंटीग्रेशन। कारपेट में 60 प्रोसेसेस होते हैं, तो ज्यादातर जो प्रोसेस है दे आर ओन्ड बाय अस और इन्फ्लुएंस बाय अस। दूसरा ये है कि जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, आई वाज गोइंग डायरेक्टली टू द व्यूअर्स। पूरी कारपेट इंडस्ट्री ठेकेदारों के थ्रू चलती है। एक बड़ा ठेकेदार होता है, फिर छोटे ठेकेदार होते हैं, फिर गांव के अंदर दूसरे ठेकेदार होते हैं। तो द होल इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। मैंने कभी कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं किया और डायरेक्ट हम लोग व्यूअर से ही काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को दूर हटाना कितना महंगा पड़ सकता है, उसकी एक छोटी सी कहानी में आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैं अपने गुजरात ऑफिस में बैठा था, तो एक बहुत ही पॉलिटिकल पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर मेरे कमरे में आया और मेरे सामने एक छोटी सी गन रख दी कि मिस्टर चौधरी या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाइए, नहीं देखिए आपके क्या हाल होंगे। मुझे समझ में आया कि इट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज फेलियर।
तीसरा जो कारण है कि हम जो भी रॉ मटेरियल है वो सारा वीवर के घर पे देते हैं, बना हुआ माल भी उसी के घर से लाते हैं, सारा पेमेंट उनको घर पे देते हैं, और सारी ट्रेनिंग जो भी सब कुछ सारी सुविधा उनके घर पे देते हैं। तो एक महिला को अपने घर के बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोरोना के बाद में जो कॉन्सेप्ट आया कि वर्क फ्रॉम होम, ये तो हमने आज के 44 साल पहले शुरू किया था। 2014 में हमने एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया मन चाहा प्रोजेक्ट। मन चाहा प्रोजेक्ट का ये मतलब है कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको हमने फ्रीडम दी कि आप अपने डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए, आपके हार्ट में आपके अंदर जो चलता है। इसकी शुरुआत कैसी हुई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बेटी कविता जो एक ग्लोबल डिजाइनर है, वो जब मेरे साथ गांव में जाती थी तो बोलती थी पापा इसमें कुछ महिलाएं तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं उसको बोलता था तेरे को मैंने शिकागो में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, इतना पैसा खर्च किया है, तेरे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है? ये तो स्कूल भी नहीं गई पढ़ने के लिए। लेकिन उसने कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपने डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए। और आज ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेस हो चुका है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को, उन महिलाओं के बने हुए डिजाइन को 9 तो अभी तक ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। और दुनिया के जो टॉप इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, पैसे वाले, सेलिब्रिटीज है, वो उनके बने हुए कारपेट खरीदते हैं। 2017 में बिमला देवी, जो कभी स्कूल भी नहीं गई, कभी अपने गांव के बाहर भी नहीं गई, उसने अपनी खुद की डिजाइन का जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता। और वो बेटी के साथ अवार्ड लेने के लिए जर्मनी गई। मैंने इन महिलाओं में इंसान देखा, और जो बेटी कविता थी उसने इन लोगों के अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा। और दोनों चीज को इन महिलाओं ने प्रूव करके बताया। 2016 में हमने एक और नई इनिशिएटिव शुरू की, उसका नाम है फाउंडर मेंटेलिटी। आउट ऑफ 1 million founder driven company, only 2 company crosses 100 million revenues। 10 लाख में से केवल 2 ही कंपनियां हैं जो बड़ी बनती हैं, बाकी कंपनियां बंद हो जाती है या छोटी रह जाती है। उसका कारण ये पता चला कि ज्यादातर जो फाउंडर होते हैं वो ये डिफाइन करके पेपर पे नहीं लाते कि मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था, हु वी आर, व्हाट इज माई कोर, हु एम आई। तो जब वो उसको पेपर पे नहीं लाते हैं तो दे आर इनेबल टू टेल द सेकंड जनरेशन एंड इनेबल टू टेल द प्रोफेशनल्स। तो कंपनी की सिंप्लिसिटी खो जाती है और फोकस खो जाता है, और कंपनी धीरे धीरे अनसस्टेनेबल होती जाती है। रिसर्च बताती है कि फ्रंट line is the king of the business, front line is the heroes of the business, and front line pay the salary to the professionals। तो बेन एंड कंपनी ने हमारी भी कोर को डिफाइन किया। और कोर का मतलब यह है कि अगर मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं, जिस कंपनियों को मालूम है कि मैं कौन हूं, उनका कॉन्सेप्ट है कि द डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो पाएगा। तो हम भी हमारी कोर में जितना गहरा जा रहे हैं, तो जो फ्यूचर विजन है जयपुर रक का, वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब है कि हमारे जितने भी जो आर्टिजन है, they will be converted into the artist and will connect with the world of design। इससे उनकी डिग्निटी बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी। 2019 में राज सिसोदिया, जिन्होंने यूएस में कॉन्शियस कैपिटलिज्म की शुरुआत की थी,
और उनकी पहली किताब भी कॉन्शियस कैपिटलिज्म पे थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी एंड हील द कस्टमर। पूरे दुनिया से उन्होंने 25 केस स्टडी ली। उनकी किताब में जो पहली केस स्टडी है वो जयपुर रग की है कि हाउ जयपुर रग इज हीलिंग द कस्टमर एंड द सोसाइटी। हमारी जो टेग लाइन है वो है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज, वी सेल एक्सपीरियंस, एंड इफ यू बाई अवर कारपेट दैट इज फ्री। जब कोई भी कस्टमर हमारा कारपेट खरीदता है तो जो वीवर की ब्लेसिंग्स है वो उसके परिवार में जाती है, और उस कारपेट से जो वार्मथ वीवर फैमिली को मिलती है, दैट कम बैक टू द आर्टिजन थ्रू पोस्ट कार्ड एंड मैनी अदर इनिशिएटिव्स। इट कंप्लीट द सर्किल, जिसको हम टोटलिटी बोलते हैं। अपनी बात को बंद करने से पहले एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ता था तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए, तो बोले कि ये रोल नंबर किसका है, वो खड़े हो। तो वो रोल नंबर मेरा था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा आज ये क्या पनिशमेंट देंगे प्रोफेसर, मैं तो बड़ा डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मैं तो शैतानी कभी करता ही नहीं। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और पूरी क्लास को दिखाया कि देखो इस लड़के ने क्या आंसर लिखा है। सवाल था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने जो जवाब दिया वो था, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। थैंक यू। That's too good, sir. बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त था। So I'm going to request everyone to post your questions, and you probably realized how close every single thing that sir said is to what we study. तो सर आपको जैसे सवाल आ रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सारे जो भी यहाँ पर है ये चिरंजीव गुरुकुल के स्टूडेंट्स है या टीचर्स है। और चिरंजीव गुरुकुल में हम भारतीय शास्त्र पढ़ाते हैं, खासकर कौटिल्य अर्थशास्त्र। और आपने जो भी चीज कही है अभी तक, ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट ऐसे लगता है कि कौटिल्य ने ही कही है। तो आपके थ्रू कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक्चुअली इज बीइंग लिव्ड। So just like the great and late C.K. Prahlad wrote about your organization, perhaps many things are coming alive of Arthashastra through your organization. क्योंकि आपने जो last वाली चीज कही, which you wrote as a student, it is, I don't know how to express. I mean, I'm getting goosebumps as I think about what you said about something like creation and nurturing of business, and business is next to love. This is exactly the language of Kautilya. So I'm going to ask people to put in their questions, and first has already come in, sir, but मैं आपको एक सवाल, just taking advantage of the fact that I am your host, I want to ask you, sir, आज के present समाज में in Rajasthan and especially in the communities that you work, what is the status of the woman? I would like to know, has that change begun to happen through your powerful work and highlighting the beautiful work that these women do, in especially not just the weaving but also leadership? तो कुछ बदलाव आया है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ. Then I'll bring in the questions of others. देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रास रूट पे जो वुमेन है, तो उनमें जो बदलाव आया उसको देखने के लिए तो पूरे दुनिया के लोग आते हैं.
एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कि आज जो ये वुमेन है, फॉरेन के इतने लोग आते हैं, उनसे हाथ मिलाती है, उनके सामने कुर्सी पे बैठती है और बिना घूंघट के उनसे बात करती है। तो कई बार जब उनके हस्बैंड आ जाते हैं तो एक दो बार मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब आप घूंघट निकालिए, अब आपकी वाइफ घूंघट नहीं निकालेगी। इतना उनमें कॉन्फिडेंस आया है। और जहां तक पढ़ी लिखी वुमेन है, तो मेरी जो बेटी है आशा, जो अमेरिका में कंपनी चलाती है, तो उस कंपनी की वो सीईओ है। अभी अर्नस्ट एंड यंग ने भी उसको जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अमेरिका में नॉमिनेट हुई थी वो, और वन ऑफ द बेस्ट वुमेन सीईओ इन यूएस इन कारपेट इंडस्ट्री वो मानी जाती है। और हमारे जो अभी जो हमने पिछले जो 4-5 साल में मोस्टली 60-70% जो हायरिंग की है वो वुमेन की है। और हमने देखा है कि उनमें जो क्रिएटिविटी है वुमेन में, उनमें जो एम्पैथी है, आज जयपुर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने पे उन्हीं का हाथ है। एंड ऑल दिस वुमेन आर क्रिएटिंग ए न्यू फ्यूचर नॉट ओनली फॉर जयपुर बट फॉर द कारपेट इंडस्ट्री। Thank you so much, sir. Okay, the next question is from Geetanjali, who asked, with so many challenges faced along the way, how did you feel inspired to be persistent in achieving your purpose? देखिए, जब अपने कुछ भी करते हैं, कोई भी डिसीजन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जितना ज्यादा उस काम से प्रेम होता है, जितना उससे लगाव होता है, तो फिर वो काम नहीं लगता। और दूसरा इंस्पायर करने के लिए कि मैंने अब शुरू से लेके आज तक है ना, अपने आप को एक बच्चे की तरह रखा। पिछले 3-4 साल में मैंने अपने आप पे काफी काम किया, अपने में काफी ट्रांसफॉर्मेशन लाया मैं। तो मैंने परिवार में, ऑफिस में सबको बोला कि अभी मैं एक 3 साल का बच्चा हूं, लेकिन नाउ आई एम ए वाइजर चाइल्ड। बच्चे में क्या होती है? क्यूरियोसिटी, इनोसेंसी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो वो आपको ताजा रखती है डेली। So amazing. Okay, Nilesh asked that, okay, things are probably going great now, but what are the threats ahead, if any, and how are they being managed? Threat जो है business का, how do you perceive them and manage them? आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइए। Okay sir, I'll repeat. Nilesh पूछ रहा है कि अभी business has grown so much, लेकिन आगे कोई थ्रेट्स है क्या, और उस थ्रेट्स को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? हाउ डू यू सी द फ्यूचर? क्योंकि एक तरफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन दूसरी तरफ थ्रेट्स भी है। हाउ आर यू कोपिंग विद दैट? देखिए, सबसे बड़ी जो थ्रेट होती है जब बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, तो जो सबसे बड़ी थ्रेट है, यू कैन लूज द सोल ऑफ योर बिजनेस। वाओ। आप उस वक्त ये भूल जाते हैं हु वी आर। और वहीं से आज वो कंपनियां रास्ता भटक के दे केम ऑन द डेथ बेड, वो उनका डेथ बेड बन जाता है। जो ही रास्ता भटकेगी कंपनी, वो उसका डेथ बेड बन जाएगा। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हु वी आर है, वो जो कोर है जयपुर की, वो पूरे परिवार में और कंपनी में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो कोर उनकी नहीं जाए, वो सारी डिसीजन करें उस कोर को लेके करें। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये चैलेंज है कि जो जयपुर का पर्पज है, जयपुर की जो वैल्यूज है, उससे अलाइंड प्रोफेशनल चाहिए। अगर कोई भी प्रोफेशनल काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो उस वैल्यू और पर्पज में अलाइन नहीं है, तो वो आपके कल्चर को बिगाड़ देगा। तो आज के दिन ये तो सबसे बड़े चैलेंजेस है। एक्सीलेंट। और आई थिंक रेयर इज द बिजनेस लीडर हु स्पीक्स अबाउट दिस एज द थ्रेट, क्योंकि हम बाहर की बात करते हैं एज अ थ्रेट, आप तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब द कोर ऑफ द बिजनेस एज द थ्रेट। अमेजिंग व्यू पॉइंट। डॉक्टर अखिल बसरा इज आस्किंग, इतने सारे आपने इनिशिएटिव्स अभी शुरुआत की है,
how do we ensure that these will sustain in the long term? उसके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, हम कोई भी जो इनिशिएटिव शुरू करते हैं, जैसे ग्रास रूट पे हमने बहुत सारी इनिशिएटिव शुरू की, तो इनिशिएटिव शुरू करने से पहले भी सारे आइडियाज उन्हीं लोगों से लिए और उन्हीं लोगों को ओनरशिप दी हमने। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि अभी हमारे पास ऑर्डर्स काफी अच्छे हैं, हमें और बहुत सारे नए वीवर चाहिए। तो हमारे जो पुराने जो वीवर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप अपने सगे संबंधी जो दूसरे गांव में हैं उनको इंस्पायर कीजिए। और वो वीवर्स बहुत तेजी से हमारे नए प्रोडक्शन की लूमों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो उन्हीं से आप आइडिया लो, उन्हीं को ओनरशिप दीजिए और उनको इंस्पायर रखिए, मतलब तो फिर वो इनिशिएटिव मरेगी नहीं। तो फिर वो लीडर पर डिपेंडेंट नहीं है, जो लोग हैं नीचे वो ही काम कर रहे हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, परमेश्वरन अय्यर इज आस्किंग कि आपने जो जैसे बिजनेस डिफाइन किया है वो इतना यूनिक है। हाउ डिड यू इवन कम अप विद दिस आइडिया टू बिल्ड दिस नेटवर्क ऑफ वीवर्स who are where they are, work from home, जैसे आपने कहा from where you began? कैसे आपने ये सोचा when carpets were being manufactured in factories? What helped you or what made you define your business in this manner? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि चौधरी साहब आपने कौन सी किताब पढ़ी जिससे बिजनेस मॉडल बना? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप गरीबी दूर कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही जवाब देता हूं कि आपको ये मालूम है हु एम आई, एंड इफ यू हैव द सेल्फ लव, तो जब आप अपने आप को लव करते हैं, अपने काम को लव करते हैं, और आपको मालूम है मैं कौन हूं, तो आई विल लिसन माई सेल्फ, आई लिसन माई इंट्यूशन। तो वो जो इंट्यूशन जो ऑथेंटिक ढंग से आपको गाइड करती है, तो आप जो भी करेंगे वो ग्लोबली एक यूनिक अपने आप ही बनता जाएगा। तो राजेश जी, मैं एक ही जवाब देता हूं कि मैंने जो अपने जीवन में किया, मैंने वो किया जो मेरा पैशन था, जिसमें मुझे मजा आता था। तो अंदर से मुझे इतना मजा आया कि एक दिन मैंने जो भी किया वो चीजें यूनिक बनती अपने आप चली गई। Just too good. Sorry, it's almost 12:30, but with your permission और 2-3 सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जरूर, खूब मजा आ रहा है। So let me just get the name. Yeah, Vinaya has asked that आपने कहा that at some point in time the ego of running an organization came into your organization, और आपने कहा that I was able to conquer fear and ego. Largely आपने तब कहा by starting to learn again and reading new things. तो आप हमें क्या advice या suggestion देंगे? How do we develop this habit of re-looking at ourselves and overcoming our own egos and arrogance? बहुत एक अच्छा सवाल है, और इस पे मैंने बहुत विचार किया और बहुत रिसर्च भी की, और अपने आप पे, और वो रिसर्च भी मैंने अपने आप पे की कि सबसे पहले मैं सुधरूंगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन सुधरेगा, मेरे बच्चे सुधरेंगे। तो मुझे समझ में आया कि अपने जब सफलता मिलती है तो लोग अपने को बोलते रहते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये है वो है, बड़ी अच्छी प्रशंसा चारों तरफ से मिलती है। तो वी क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटी, और कोई भी जो आइडेंटिटी जो अपने बनाते हैं, दैट इज ए फॉल्स इमेज ऑफ माई सेल्फ। वाओ। तो अपने जब कोई भी काम करते हैं, एक मैनेजर है, जब वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा तो अपने काम को तो भूल जाएगा, वो आइडेंटिटी खो नहीं जाए उसका डर उसको लगा रहेगा। तो आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए he will start doing the wrong things and he will develop the self destructive habits within him.
तो मैं उसको जानने के लिए कि मैंने जो अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है अपने बिजनेस में, परिवार में, समाज में, उसके बारे में मैं इंट्रोस्पेक्शन करूं तो पता चलेगा इट इज ए फॉल्स इमेज ऑफ माई सेल्फ, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी। गुड। सो सर, हम आपको बता दूं, ऑफ कोर्स दिस इज नो कंपैरिजन टू ऑल दैट यू हैव डन। हमारे पढ़ने के क्रम में एक मेथोडोलॉजी है जिसे हम कहते हैं स्वाध्याय, और उस स्वाध्याय में हम सभी से यही कहते हैं that using certain core questions you need to introspect and go within yourself. उससे आपको पता चलेगा कि who is the true you, and आपके ये कहने से it gives us more confidence that is one of the ways indeed. Thank you. Right. Okay, 2 more questions. Once again Parmeshwaran asked कि आपने बात कही about reinforcing your core of the business. How do we do that on a daily basis? Ki in the rush of growing and in the rush of market and all of that activity, how do we keep remembering our core? देखिए, मैं आपको बताऊं, बेन एंड कंपनी की एक बहुत अच्छी रिसर्च है, और वो है कि इफ यू डोंट नो हु आर यू then there is no point having the business at all. एक छोटी कहानी में बताऊंगा जी, सॉरी सबसे। एक बार एक आदमी एक रास्ते पे जा रहा था, तो वो आगे गया तो वो रास्ता 2 रास्तों में डिवाइड हो गया। तो वहां एक बुढ़ा आदमी था, तो उसने पूछा कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। तो उस आदमी ने बोला, मुझे ये नहीं मालूम मुझे जाना कहाँ है। तो बोला, तेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को ना ये देखिए कि मेरी नेचुरल एबिलिटी क्या है, वो कौन सा काम है जिसमें करने में मेरे को मजा आता है, और उसी काम को आप अपना प्रोफेशन बनाएं, उसी काम को आप अपना बिजनेस बनाएं। और ये भूल जाएं कि दुनिया के सक्सेस के क्राइटेरिया क्या है। बस आपका सक्सेस का क्राइटेरिया कि आप जो करते हैं उसमें आपको आनंद आए, वो याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राजा। राजा पूछ रहे हैं, सर, एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेसेस, द कोर इज इन भारत। आपने क्यों सोचा कि आप अपने बच्चों को विदेश भेजे पढ़ने के लिए? नहीं, मैंने उस वक्त तो इतनी समझ भी नहीं थी कि पढ़ाई क्या होती है। ये तो बहुत मार खाने के बाद में समझ में आया कि ये जो इस पढ़ाई का मतलब क्या है। आज जो इतना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है उसमें मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ए बिग डिस्ट्रैक्शन। तो उस वक्त तो क्या है कि विदेश में पढ़ना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और बच्चों की इच्छा थी। तो ये मेरा सोच नहीं था कि मुझे अपने बच्चों को वहां भेजना है, ये बच्चों ने डिसाइड किया। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि उस पढ़ाई का ना दैट मीन्स नथिंग, लेकिन ये भी मेरे को समझ में आ चुका है। और आपके वैल्यूज के वजह से दैट स्टिल बिकेम ट्यून्ड इन द वे यू वर थिंकिंग। क्योंकि जो भी मैंने देखा है, इंटरव्यूज देखे हैं, ऑफ योर daughters and son, it seems completely aligned with your language. बिल्कुल जी। Amazing. Sir, I don't know how we will cover all these questions, but for now I will take one question because ये बहुत relevant है from an industry point of view. Piyush is asking, how do you think small businesses can be sustained or grown? जैसे कि the smallest retailer, for example, वो बिजनेस शुरुआत तो कर देता है, बट उसको बड़े बिजनेसेस के साथ compete करने के लिए क्या करना चाहिए so that he or she too can sustain and be there in this large ecosystem? What's your suggestion? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अपने जब किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो वी आर ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
मैं इसलिए छोटा हूं कि कोई दूसरा मेरे से बड़ा है, और जो ही मैं मेरे छोटे होने का एहसास आता है, मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो मेरा तो एक सुझाव रहेगा कि चाहे जितना छोटा बिजनेस करें, स्टार्ट वेयर यू आर टुडे, लेकिन आप वो ही करें जो आपकी कोर है, क्योंकि वो कोर एक दिन आपको यूनिक बना देगी। आप किसी बड़े बिजनेस से उसकी तुलना में मत कीजिए। आपकी जो कोर है उससे आप बिजनेस को शुरू करेंगे और उसी कोर पे फोकस रखेंगे और उसमें आप डीपर जाते जाएंगे, तो योर बिजनेस धीरे स्लोली ना आपका मतलब यूनिक होता जाएगा, प्रॉफिटेबल होता जाएगा और स्केल होता जाएगा। So it's not about size at all. Finally, exactly, build your excellence in whatever you do. Perfect. बहुत बढ़िया. Okay, I have just no way I can cover all these questions. जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ और 25 नए क्वेश्चन आ गए सर, तो I am going to send this to Falguni for you to respond as and when you can. ठीक है जी, जरूर. लेकिन फिर भी आपको एक लास्ट सवाल पूछूंगा, because I think it will be a short one. Akil ji is asking, when are you planning to put all this down in your experiences of an autobiography? नहीं, अभी क्या मुझे किताब लिखना नहीं आता, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा राइटर मिल जाए जो मेरी बात को समझ के ना उसको जमा देवे और किताब में लिख देवे। वैसे अभी मैं लिंक्डइन पे काफी सक्रिय हूँ और काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये लिखेंगे जरूर। Absolutely. So Akhil, let me at least say this. We have been following, Amita of course led me to it. We have been following Chaudhary Saab's blog. तो उसमें अपने 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 अलग अलग सोच विचार एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, and they are very inspiring. In fact, मैं तो ये कहूँगा that every to be leader should take some of these messages for the day. So thank you Chaudhary Saab for both your amazing time. लेकिन मैं ये कहूँगा that we can go on full day and still not be satisfied. But especially for our students of Chiranjeev Gurukul, participants and teachers of Chiranjeev Gurukul, this has been an enriching experience that has made our entire Shastra come alive, sir. आप भले ही आपने reference होगा of many books, global books, लेकिन every word of yours correlates to our Shastras. So hopefully one day, definitely not a biography, लेकिन हम Jaipur Rugs को study करके put it as to how it reflects everything that our Shastra, whether Artha Shastra or Yoga says. Thank you so much. हम सबके तरफ से आपको नमन to you and your whole team, including that last mile woman who is creating such amazing work. Thank you so much, sir. Thank you. Bye everyone.